10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ 12ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಿದ್ದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು 5ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ 3ನೇ ಬಾರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಅದರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮದವರಿಗೆ ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಲೋಕಸಭೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। ಇವತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕಣ್ಣೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಕಂಡ ಅಪ್ಪಟ ದೇಶಭಕ್ತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣದ ದಿಕ್ಕುಸುದ್ದಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿ ಸೇರಿದಿರಿ, ಬಿಸಿಲನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ತಾವಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಿರಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ದೇಶ ಕಂಡಂತ ಅಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಂತಹ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗಿರಿಯ
ಅಕ್ಕ ಆದಂತ ಗಾಯತ್ರಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರವರೇ, ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂತ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉದಾಸಿ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಲತಾವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಅಣ್ಣತ ಮಂತ್ರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ದೇಶ ಕಂಡ ಹಲವಾರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಟ ದೇಶಭಕ್ತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಂತರ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಭಾಗ್ಯ. ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 18 ತಾಸು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 100 ವಯಸ್ಸಿನ ತಾಯಿ ಹೋದಾಗ ಕೇವಲ 3 ಗಂಟೆ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು 4ನೇ ಗಂಟೆ ಮತ್ತೆ ದೇಶದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಈ ದೇಶ 130 ಕೋಟಿ ಜನರು ಹಲವಾರು ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಮೋದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಡೀ 130 ಕೋಟಿ ಜನರ ಮನದಲ್ಲಿರೋದೇ ಬಂಧುಗಳೇ. ಮೋದಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ? ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತಿತ್ತೋ, ಇದುವರೆಗೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತ ದೇಶ ಶ್ರೀಮಂತ ನಾಯಕ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಭಾರತದ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರ, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ರಾಜ್ಯ ಆಗಿತ್ತು, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಸಂಸದನ ಮಾಡಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತ ನಾಯಕ ಇವತ್ತು ಭಾರತವನ್ನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಮುಕ್ತ ಭಾರತವನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಾಧ್ಯ ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಅಸಾಧ್ಯ, ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಡೆ. ಆದರೆ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂಧುಗಳೇ 25 ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನ ಬಡತನ ರೇಖೆಯಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಿರುವಂತ ಸಾಹಸಮಯ ನಾಯಕ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು 25 ಕೋಟಿ ಜನರ ಮೇಲೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ 70 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾಡೋ ದೂರಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಕೆ ಯಾರಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯ, 100 ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡೋದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತಿತ್ತು. ಆದರೆ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಂಪು ಕೋಟಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು 2024 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೆ ನಾನು ನೀರನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು 75 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹರ್ ಘರ್ ಗಂಗಾ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಇರುವಂತಹ ನಾಯಕ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಬಂಧುಗಳು. ಬರ ಪರಿಹಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಇವತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಟ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅವರು. ಯಾವ ನೀತಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು,
ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರ ಇದ್ದಾಗ 1 ವರ್ಷ 1.5 ವರ್ಷ ನಂತರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು? 7%, 8%. ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, 2004ರಿಂದ 14 UPA ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು 19,579 ಕೋಟಿ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಖರ್ಗೆ ಇವರು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಷ್ಟು? ಕೇವಲ 1,054. 10% ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯ 10% ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ NDA ಸರ್ಕಾರ 2014ರಿಂದ 2024 ಬೇಡಿಕೆ ಇರೋದು 18,747 ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಒಟ್ಟು 10,000 ಕೋಟಿ. ಒಟ್ಟು 10,000 ಕೋಟಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ಎಲ್ಲಿ 1,980 ಕೋಟಿ, ಎಲ್ಲಿ 10,000 ಕೋಟಿ? 10,000 ಕೋಟಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ವೋಟಿಗಾಗಿ, ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತೀವ್ರಗತಿಯಿಂದ ಖಂಡಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ಇಂತಹ ಸುಳ್ಳ ಮೋಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ಮೇಲೆ 3,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಇತ್ತು, 6,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು. 7,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 2 ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೋಡ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಇತ್ತ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಇತ್ತ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಮುಂದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 60 ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದರೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಡವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, 1 ಕೋಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಇತ್ತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ? ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಇತ್ತ? ಇರಲಿಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಂತು. ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತ? ಇರಲಿಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇತ್ತ? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶವನ್ನ ಕೆಳ ಹಂತದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ. ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು, ಇವತ್ತು ನಾವು ನೀವು ಕೂತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದಲ್ಲ, 2 ಅಲ್ಲ, 3 ಬಾರಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 130 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಪುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಉಳಿಸಿದಂತ ಜೀವದಾತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಬಡವರಿಗಾಗಿ 10 ಕೆಜಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಈಗ 5 ಕೆಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಡವರ ಅನ್ನದಾತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಜ್ವಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಶಾಶ್ವತ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೋಗಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಜೀವ ಉಳಿಸಿರುವಂತ, ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ, ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ, ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಬೇಡೋ? ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಬೇಡೋ? ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಬೇಕು ಬೇಡೋ? ತೀರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ, ಬಿಜೆಪಿ ಮತದಾನ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಿರೋ? ಯಾರ್ಯಾರು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಕೈ ಎತ್ತಿರಿ ನೋಡೋಣ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ನಾವು ಧನ್ಯತೆಯಿಂದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ, ಭಾರತವನ್ನ ನಂಬರ್ 1 ಮಾಡಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಒದ್ದೋಡಿಸಿ, ಈ ದರಿದ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಕ್ ಆಗದಿರುವಂತ ಭ್ರಷ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಒದ್ದೋಡಿಸಿ ಅನ್ನುವಂತ ಕರೆಯನ್ನ ತಾನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಕೈಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಗಾಯತ್ರಕ್ಕನಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಮತಗಳಿಂದ ಆರಿಸ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ನನಗೂ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಉಜ್ವಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್, ಮುದ್ರಾ, ಮಾತೃವಂದನ, ಶೌಚಾಲಯ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್, ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಬಡಾವ್ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ತನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸ್ವ ಎನ್ನುವ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿಯ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. मैं ताई भुवनेश्वरी और इस क्षेत्र के सभी पवित्र मठों को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूं. साथियों, कर्नाटका ने 26 अप्रैल की वोटिंग से कांग्रेस में कोहराम मचा दिया है. मैं आज हिंदी में बोलूं तो चलेगा ना? आज कोई भाषांतर करने वाला नहीं रखा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपका मेरे प्रति इतना प्यार है, इतना प्यार है कि आपको शब्दों को कभी समझने की जरूरत नहीं रही है. भाषा हमारे बीच कभी दीवार नहीं रही है. क्यों? हमारा दिल का नाता बन गया है. भाइयों बहनों, 26 अप्रैल को जो मतदान हुआ और कर्नाटका ने, यहां की माताओं बहनों ने, यहां के फर्स्ट टाइमर वोटरों ने जो कमाल करके दिखाया है, पूरी कांग्रेस ऊपर से नीचे तक बहुत परेशान हो गई है. साथियों, पूरी कांग्रेस इस कोशिश में लगी है कि 7 मई को कुछ तो ऐसा हो ताकि कम से कम एक खाता तो खुल जाए. उनके लिए इस बार दिल्ली में खाता खुलने की संभावना खत्म हो गई है. लेकिन दावणगेरे का ये विशाल जन समर्थन, ये बता रहा है कि कर्नाटका की जनता कांग्रेस को उसके पापों की सजा दे करके रहेगी. साथियों, अब वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस पार्टी के
अलग अलग गुटों में भीतर ही भीतर जो गृह युद्ध चल रहा है वो सड़क पर आने वाला है। सारे गुट हार का ठिकरा एक दूसरे के सिर पर फोड़ते नजर आएंगे और इनका तो मुसीबत ऐसी है कि पहले जब भी हार जाते थे तो ईवीएम को टोपी पहना देते थे। क्यों हारे? ईवीएम। डिपॉजिट क्यों गई? ईवीएम। मोदी क्यों जीत गया? ईवीएम। वो दिन रात चुनाव आते ही ईवीएम 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 की माला जपते रहते थे। अब परसों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा चाटा मारा है, ऐसी थप्पड़ मारी है कि अब उनके लिए परेशानी है कि अब तक तो ईवीएम का नाम देकर के अपने कार्यकर्ताओं को मोरल बूस्टिंग के लिए काम कर लेते थे। अब उनकी मुसीबत है, अब ये ईवीएम वाला बहाना भी तो सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया। अब हार जाएंगे तो बोलेंगे क्या? आज पूरी कांग्रेस चुनाव हार जाए तो क्या बयान देना उसके ड्राफ्टिंग में लगी हुई है, तैयारी कर रहे हैं। साथियों, मैं कर्नाटका में जहां जहां गया हूं, मुझे तमिलनाडु के चुनाव में जाने का अवसर मिला, मुझे केरल में जाने का अवसर मिला, मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के हर कोने में गया हूं। मैं 2014 में भी जाता था, 2019 में भी आया था, लेकिन 2024 का मिजाज ही कुछ अलग है। क्योंकि देशवासियों ने 10 साल हर पल मोदी को कसौटी से कसा है, तराजू से तोला है। मोदी की वाणी, मोदी का वर्तन, मोदी का समर्पण, 10 साल से देश 280 करोड़ निगाहें हर पल मोदी को देख करके सही गलत का फैसला करते हैं। और अनुभव के बाद 10 साल की कठोर कसौटी से निकल करके आज जब मोदी आया है तो आपका जाना हुआ मोदी है, आपका परखा हुआ मोदी है और आपके लिए जिंदगी खपाने वाला मोदी है। और ये मैं आज जो 14 में नहीं देखा, जो 19 में नहीं देखा, वो 24 के चुनाव में मैं भरपूर देख रहा हूं। मेरी माताएं बहनें, ऐसा लग रहा है मोदी का एक अभेद्य रक्षा कवच बन गई है पूरे देश की माताएं बहनें। छोटी छोटी बालिकाएं, मैं यहां देख रहा हूं कितनी बालिकाएं ऊपर हाथ कर रही है। भाइयों बहनों, एक तो राजनीति कांग्रेस के अपने कारनामों के कारण पिछले 70 साल में क्षेत्र बदनाम हो चुका था। उसके बावजूद भी मोदी को इतना प्यार, इतने आशीर्वाद, शायद अनेकों जन्मों का पुण्य है या परमात्मा ने मुझे भेजा है, तब जाकर के ऐसे आशीर्वाद मिलते हैं।
मैं किस किस का आभार व्यक्त करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। क्या मैं परमात्मा का आभार व्यक्त करूं? क्या मैं जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करूं? क्या मैं गांव गरीब का आभार व्यक्त करूं? क्या मैं मेरे देश के नौजवानों का आभार व्यक्त करूं? मेरे पास आपके इस प्यार को व्यक्त करने के लिए, आभार बताने के लिए आज शब्द कम पड़ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आज मेरे पास है तो एक है जिसमें शब्द नहीं है, संवेदना है, जिसमें पूरी तरह मेरा मौन समर्पण है। और मेरे पास एक ही रास्ता बचा है कि देशवासियों को सदा सर्वदा सर झुका करके प्रणाम करता रहूं। नम्रता पूर्वक ये सर झुकाकर हमेशा हमेशा के लिए मेरे देशवासियों को मैं प्रणाम करता रहूं, उनके आशीर्वाद लेता रहूं और न कभी थकूंगा, ये मेरी गारंटी है। न कभी थकूंगा, न कभी रुकूंगा, न कभी झुकूंगा और हर पल आपके लिए जूझता रहूंगा। ये गारंटी मोदी ने 10 साल आपने मुझे देखा। भाइयों बहनों, आज मैं जहां जाता हूं, देश के हर कोने से, कर्नाटका के हर कोने से एक ही आवाज आती है, एक ही सुर सुनाई देता है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार 4 जून को पूरे कर्नाटका में सेलिब्रेशन होने जा रहा है। और सेलिब्रेशन ऐसा वैसा नहीं होगा। ये मेरे दावणगेरे में तो स्पेशल बेणे डोसा, अभी से तैयारी कर लो भाई, बेणे डोसा की महक बढ़ने वाली है। साथियों, आज एक और बीजेपी सरकार देश को आगे लेकर जा रही है। दूसरी ओर कांग्रेस कर्नाटका को पीछे धकेल रही है। एक और मोदी का मंत्र है, विकसित भारत के लिए 24 घंटे काम, बिना रुके, बिना थके, 24 घंटे काम, 24/7, 24/7 और 2047। और दूसरी ओर कांग्रेस का वर्क कल्चर है, ब्रेक करो या तो ब्रेक लगाओ। कांग्रेस देश की एकता को ब्रेक करने में जुटी हुई है और डेवलपमेंट के कामों पर ब्रेक लगाने में लगी हुई है। साथियों, बीते 10 वर्षों में एनडीए ने कर्नाटका के विकास के लिए जितना काम किया
येदियुरप्पा जी और बसवराज बोम्मई जी ने कर्नाटका के लिए जो मेहनत की, कांग्रेस उसे बर्बाद करने पर तुली है। और कर्नाटका में कांग्रेस जनता को एड्रेस नहीं कर रही है। वो सुबह शाम तय करते हैं कि नंबर 2 एक को कैसे मारेगा, एक नंबर तय करता है नंबर 2 को कैसे मारेगा। वो उसको नीचा दिखाने के लिए क्या करेगा, ये उसको नीचा नहीं गया, ये यही खेल चलता है। कर्नाटक को ऊंचा दिखाने के लिए उनके पास कोई विजन ही नहीं है। अपने इन गुटबंदी के कारण, अपने ही भाई भतीजावाद के कारण, उनकी गलत नीतियों के कारण कांग्रेस कर्नाटका में युवाओं, किसानों और सामान्य नागरिकों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। और कर्नाटका कांग्रेस का हाल देखिए जी, वो जनता को तो समझा नहीं रहे कि अंदर अंदर क्या करते हैं। अच्छा भाई 2.5 साल ये बैठेगा, बाद में 2.5 साल तुम आ जाना। अब ये 2.5 साल वाले एक दूसरे के पैर काटेंगे कि नहीं काटेंगे। और मैंने तो सुना है कि इंडिया अलायंस वालों ने एक नई फॉर्मूला खोज निकाली है, क्योंकि मैंने एक पब्लिक मीटिंग में पूछा कि भाई इतना बड़ा देश आखिरकार किसको सुपुर्द करे। आज देश 5 साल के लिए जिसके भी हाथ में देना है तो हम सोच विचार कर देंगे कि नहीं देंगे, सोच करके देंगे कि नहीं देंगे। ऐसे ही हाथ बंद करके कोई भी आया तो दे देंगे क्या, दे देंगे क्या। बराबर विचार करेंगे भाई ये देश संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, सारा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे कि नहीं देखेंगे। अब मैं उनको पूछता हूं, बताओ तो सही, आपके पास कौन नाम है जिसको देश के लोग, देश उसको सुपुर्द कर सके। कोई नाम है क्या, कोई नाम है क्या उनके पास। आप ऐसे अंधेरे में बिना नाम को वो कुछ भी करें, आप स्वीकार कर लेंगे क्या, देश स्वीकार करेगा क्या। भाइयों बहनों, और इसलिए उन्होंने एक फॉर्मूला निकाली है, अब सबको कैसे संतोष देना। और इसलिए 5 साल अगर उनको मौका मिल जाए तो उन्होंने अपने सभी साथी पार्टियों को कह दिया है कि हर एक को 1-1 साल के लिए पीएमशिप मिलेगा। यानी 1 साल 1 पीएम, दूसरे साल दूसरा पीएम, तीसरे साल तीसरा पीएम, चौथे साल चौथा पीएम, 5वें साल 5वां पीएम। मुझे बताइए भाई क्या होगा आपका, क्या होगा मुझे बताइए। क्या आपको ऐसी चीजों से देश का भला दिखता है, आपको आपका भला दिखता है, आपके बच्चों का भला दिखता है। अब ऐसे लोगों के लिए वोट बिगाड़ सकते हैं क्या हम, बिगाड़ सकते वोट बर्बाद कोई कर सकता है क्या। मेहरबानी करके आपका वोट बहुत मूल्यवान है, बर्बाद मत करना भैया, गलती से भी मत करना। भाइयों बहनों, कर्नाटका में कांग्रेस ने नई एजुकेशन पॉलिसी पर ब्रेक लगा दिया। बताइए, 30 साल के बाद देश के 20 लाख से ज्यादा लोगों ने मनोमंथन किया। कर्नाटका के ही बहुत बड़े वैज्ञानिक के नेतृत्व में नई एजुकेशन पॉलिसी बनी, लेकिन उनकी वोट बैंक की राजनीति को खुश करने के लिए उन्होंने उसको भी रद्द कर दिया। और इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश के युवा पीढ़ी को हुआ है। आपके बच्चों के भविष्य पर
इन्होंने ताला लगा दिया है। मेरे भाई बहन, मैं बड़े दर्द के साथ कह रहा हूं, बड़ी पीड़ा के साथ कह रहा हूं। अरे भाई, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम में से किसी को भी जनता जनार्दन के भविष्य को तबाह करने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये लोग, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। यहां हेल्थ सेक्टर की बात हो, इरिगेशन की बात हो, सब पर राज्य सरकार ने पूरी तरह डंडा चलाया, बंद करवा दिया। भगवान बसवेश्वरा की इस धरती पर इस तरह डेमोक्रेसी के खिलाफ काम करके कांग्रेस बहुत बड़ी गलती कर रही है, बहुत बड़ा पाप कर रही है। साथियों, आज कर्नाटका कांग्रेस के उसी गवर्नेंस मॉडल का शिकार बन चुका है। जिस तरह इन्होंने 6 दशकों तक देश को चलाया था, कांग्रेस ने देश में करप्शन बढ़ाने और लाखों करोड़ के घोटालों का घोर पाप किया है। क्या ऐसे लोग तेजी से विकास कर रहे हमारे भारत की कमाल, उसका नेतृत्व जो बर्बाद करते हैं वो लोग कर सकते हैं क्या? इन पर भरोसा कर सकते हैं हम? साथियों, एक समय था जब गरीबों, एससी, एसटी, ओबीसी, पिछड़ों के हक की योजनाएं कांग्रेस के करप्शन का मुख्य स्रोत हुआ करती थी। कांग्रेस के पूर्व पीएम कहते थे कि गरीबों के लिए 1 रुपया भेजते थे तो सिर्फ 15 पैसा, 15 पैसे पहुंचता था। जरा मैं पूछना चाहता तो, 1 रुपया निकलता था, 15 पैसा पहुंचता था, तो बीच में कौन सा पंजा था जो 85 पैसे मार लेता था? साथियों, यही नहीं, वंचित वर्ग के नाम पर कांग्रेस ने फेक लाभार्थी भी बना रखे थे। करप्शन का तरीका देखिए, जो पैदा नहीं हुआ, जिसका जन्म नहीं हुआ, उसकी वो शादी भी लिखवा देते थे, फिर उसको वीडियो भी बना देते थे, और वीडियो बना करके वीडियो वाली योजनाएं मार खाते थे लोग। ये करप्शन में मास्टरी थी इनकी। हमारी सरकार ने ऐसे 10 करोड़ नाम निकाले जो पैदा ही नहीं हुए थे लेकिन बेनिफिट ले रहे थे। हमने 10 करोड़ ऐसे झूठे नाम निकाले और इन लोगों की कमाई करने के सारे रास्तों को मैंने ताला लगा दिया है। आप कल्पना कर सकते हैं, जितनी कर्नाटका की कुल जनसंख्या है उससे ज्यादा ऐसे लोग कागजों पे थे जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था और सरकारी खजाने से पैसा जाता था। कांग्रेस सरकार ये जो जन्मे नहीं है ऐसे लोगों के नाम पर हजारों करोड़ रुपए भेजकर बीच में से मार लेती थी, और ये पैसे जाते थे ये कांग्रेस की पूरी इकोसिस्टम को, कांग्रेस के बिचौलियों की जेब भरती थी। अब मोदी ने इन योजनाओं को आधार और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जोड़ दिया है। बीजेपी ने अब गरीब को उसका हक दिया है। अब मोदी जो पैसा आपको भेजता है वो पूरा का पूरा आपके बैंक अकाउंट में पहुंचता है। मोदी 1 रुपया भेजता है तो पूरे के पूरे 100 पैसे पहुंचते हैं। साथियों, गरीब कल्याण की योजनाओं का सबसे बड़ा लाभार्थी गरीब, पिछड़ा, दलित, आदिवासी और हमारी माताएं बहनें हैं। इसलिए कांग्रेस को जहां मौका मिलता है वो इस वर्ग पर अपना आक्रोश उतारती है। कर्नाटका में कांग्रेस ने
एससी एसटी वेलफेयर फंड के 11,000 करोड़ रुपए डाइवर्ट कर दिए, जो एससी एसटी समाज के लिए थे। उनको जहां चोरी करने का मौका मिलता था वहां भेज दिया। कांग्रेस इस कोशिश में लगी रही कि एससी एसटी वेलफेयर फंड का पैसा कैसे कांग्रेस करप्शन फंड में ट्रांसफर किया जाए। साथियों, किसानों को किसान सम्मान निधि में 4,000 रुपये कर्नाटका की बीजेपी सरकार देती थी। कांग्रेस ने जैसे ही यहां सरकार बनाई, उसने किसानों का ये 4,000 रुपीज भी उस पर ताला लगा दिया, भेजना बंद कर दिया। अब जो मैं दिल्ली से भेजता हूं वो 6,000 रुपया जाता है। कर्नाटका की बीजेपी सरकार ने जो 4,000 दिया था, ये कांग्रेस वालों ने मना कर दिया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, उनको देश के किसानों से, कर्नाटका के किसानों से क्या दुश्मनी है, क्या नफरत है किसानों के प्रति इनकी। कांग्रेस अब तो कर्नाटका में ओबीसी समाज का आरक्षण भी तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए बांट रही है। साथियों, 10 साल से दिल्ली की कुर्सी से बाहर बैठी कांग्रेस ने देशवासियों को लूटने के लिए नई नई प्लानिंग कर दी है। अब आपकी संपत्ति को सीधे लूटने के लिए कांग्रेस इनहेरिटेंस टैक्स का आइडिया लेकर के आई है। अभी आइडिया समझने जैसा है। उनके गुरु ने अमेरिका से घोषणा की है और उनके एक वित्त मंत्री 2011 में भी कह चुके हैं। यानी ये क्या चीज लाने वाले हैं, आप चौंक जाएंगे। जो भी हिंदी समझते हैं, वो जो हिंदी नहीं समझते उनको जरूर समझाएं। ये मैं आपकी चिंता करने के लिए बोल रहा हूं भाई। इन्होंने क्या, हमारा देश कैसा है, हर मां बाप जिंदगी भर मेहनत करता है और मन में एक इच्छा रहती है कि जो कुछ भी कमाया है उसमें से कुछ बचाएंगे और मरने के बाद बच्चों के काम आए इसलिए रखेंगे। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? हर कोई पैसा बचाता है कि नहीं बचाता है? बच्चों के लिए कुछ न कुछ रखता है कि नहीं रखता है? अब इन्होंने ऐसा नियम लाने वाले हैं कि आप कितनी ही मेहनत करो, कितनी कठिनाई से जो कुछ भी जमा किया है, वो सीधा सीधा अपने बच्चों को नहीं दे सकते हो। आधे से ज्यादा 55%, 55% ये कांग्रेस वाले आए तो एक ऐसा कानून बनाकर उस पर टैक्स लगा देंगे। आपकी कमाई की हुई पैसों के वो डाका डालेंगे और आप अपने संतानों को आधा भी नहीं दे पाओगे। जिन लोगों ने पूरी की पूरी पार्टी विरासत में अपने बच्चों को सौंप दी, वो आपकी मेहनत से कमाई हुई कमाई, आपकी विरासत आपके बच्चों को देना नहीं देते हैं। साथियों, विकास के लिए ये जो खतरे लेकर के आ रहे हैं, इन लोगों से चौकन्ने रहने की जरूरत है। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, किसी भी प्रदेश में अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है तो कोई इन्वेस्टमेंट करने आएगा क्या? कोई कारखाना खोलेगा क्या? कोई हिम्मत करेगा क्या? कोई नहीं करेगा। अरे आपके पास गाड़ी है, बंगला है, सुख चैन की जिंदगी है, सब कुछ है, लेकिन शाम को घर के बाहर जाएं और रात को जिंदा लौटेंगे नहीं तो घर का क्या, उस कारखाने का क्या, उन पैसों का क्या? आज कर्नाटका को कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर होती जा रही है और कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड कानून का व्यवस्था के विषय में गंभीर रूप से गुनाहित है। ये कर्नाटका हर नागरिक आज असुरक्षा महसूस कर रहा है। कैफे में बम ब्लास्ट हो गया और कांग्रेस घोषणा कर देती है, ये तो गैस का सिलेंडर का बोतल फूट गया था, बताओ।
ये कर्नाटका के लोगों को क्या समझते हैं क्या? क्या कर्नाटका के लोगों के दिमाग में ऐसा झूठ भर सकते हो तुम? फिर आगे क्या कहा उन्होंने? वो सिलेंडर वाली बात चली नहीं तो फिर दूसरा निकाला और क्या कहा कि ये तो बिजनेस राइवलरी थी और इसलिए बिजनेस राइवलरी में ये फटाका फोड़ा है। आप कल्पना कर सकते हैं, ये तो बम धमाके के ट्रायल शुरू किए हैं। कर्नाटका की जिंदगी को खतरे में डालने का ये खेल शुरू हो चुका है भाइयों। हुबली में दिन दहाड़े कॉलेज कैंपस पे एक बेटी की हत्या हो जाए और कांग्रेस उसमें भी वोट बैंक ढूंढती रही। इस घटना ने कर्नाटका के सामान्य परिवारों के लिए बहुत बड़ी चिंता खड़ी की है, टेंशन पैदा किया है। हर मां बाप सोचते हैं कि बेटी बाहर भेज दें या न भेजें, अकेली जाएगी तो पता नहीं क्या होगा। साथियों, नेहा की हत्या ये सामान्य घटना नहीं है। और सरकार में बैठे हुए लोग वोट बैंक की चिंता में डूबे हुए हैं। ये खतरनाक माइंडसेट है और ये कांग्रेस, पीएफआई, जिस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, देश विरोधी कृत्यों के लिए प्रतिबंध लगा है, आए दिन बम धमाके करने की आदि पीएफआई को ये मोदी सरकार ने हिम्मत करके उस पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बड़े बड़े 30 मार्का जेलों में सड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के लिए ये पीएफआई के पुराने लोगों के साथ गठबंधन करके उनको बढ़ावा दे रही है। साथियों, विकास की ऐसी स्थिति हो नहीं सकती कि विकास हो। और आज अगर देश में सुरक्षा की अगर कोई गारंटी है तो उसका नाम मोदी है। विकास की कोई गारंटी है तो उसका नाम मोदी है। भाइयों बहनों, ये मोदी हैं। अब आप 10 साल से मुझे देख लिया है, घर में घुस करके मारता है जी। मेरे लिए, मेरे देशवासियों की सुरक्षा ये मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इन 10 वर्षों में कर्नाटका ने मोदी के विकास की स्पीड भी देखी है और मोदी के विकास का स्केल भी देखा है। 2014 में, यानी इतने दशकों तक कांग्रेस सरकार रहने के बाद कर्नाटका में केवल 25 नेशनल हाईवे थे और आज ये संख्या 47 हो चुकी है भाइयों बहनों। यानी कर्नाटका में हाईवेज की संख्या करीब करीब डबल हो रही है। साथियों, हमारी सरकार ने दावणगेरे को कर्नाटका का स्मार्ट सिटी के रूप में सिलेक्ट किया है। आज स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 2000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, उस पर काम पूरा हो चुका है। दावणगेरे और हरिहरा रेलवे स्टेशन को भी अपग्रेड किया जा रहा है। तुमकुरू से दावणगेरे तक डायरेक्ट रेल लिंक की परियोजना भी बनाई गई है, जिसका लाभ पूरे क्षेत्र को मिलेगा। साथियों, युवा एस्पिरेशन को पूरा करना ये भाजपा की प्राथमिकता है। हमारी सरकार है दावणगेरे में सॉफ्टवेयर पार्क ऑफ इंडिया के सब सेंटर की स्थापना भी की है। इससे यहां के युवाओं को, स्टार्टअप्स को नए अवसर मिलेंगे। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के दावणगेरे की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी गति मिलेगी। साथियों, बीते 10 वर्षों में हमने कर्नाटका के विकास के साथ साथ कर्नाटका की विरासत को भी नई पहचान दी है। 7 मई को आपका वोट
देश के विकास के साथ साथ कर्नाटका की इस विरासत को भी आगे बढ़ाएगा। बीजेपी ने दावणगेरे से श्रीमती गायत्री सिद्धेश्वरा और हावेरी से श्री बसवराज जी बोम्बाई को प्रत्याशी बनाया है। आप इनको जब कमल दबा करके वोट दोगे ना, आप पक्का मान के चलिए, मोदी की गारंटी, जब आप उनको वोट देंगे ये वोट सीधा सीधा मोदी को पहुंचेगा। आपका एक एक वोट मोदी के संकल्पों को मजबूत करेगा। आपका एक एक वोट भारत की मजबूती का आधार बनेगा। और इसलिए मैं आज आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। और मेरा आपको अनुरोध है, गर्मी कितनी ही क्यों न हो, मत का अधिकार का उपयोग पूरा का पूरा कीजिए। पुराने सारे रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला मतदान कीजिए। पूरे देश में नाम कमाए जाए इतना मतदान करिए। घर घर जाएंगे, मतदान कराएंगे, पोलिंग बूथ जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए तो मैं बताऊं। मेरा एक काम करेंगे, पक्का करेंगे। एक काम करना, ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाना, मेरी तरफ से जाना है और जाकर के कहना कि मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है, मेरा प्रणाम पहुंचा देना। हर परिवार को मेरा प्रणाम कह देना। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।